स्टूडेंट, इससे पहले हमने जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस किया। आज लेजर यानी न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा। लेजर लेजर क्या है स्टूडेंट? जैसे कि as we know, all the transactions are first entered in the journal. The transaction pertaining to a particular person, asset, expenses, or income are recorded at different places in the journal as they occur on different dates. Hence, journal fails to bring the similar transaction together at one place. It is therefore unable to supply any information about the business, such as how much money the business जैसे कि फर्स्टली किसी भी बिजनेस की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। इट मीन्स देखिए, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड इनटू द रेलिवेंट अकाउंट इन द लेजर। जो जिससे संबंधित अकाउंट होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, कैश से रिलेटेड कैश अकाउंट की उसमें एंट्री होगी। परचेज यानी खरीदने के से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन से वो परचेज अकाउंट में होगी। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक ए लेजर। ए लेजर is also called the book of final entry, since all transactions recording in the books of original entry, that is journal, are transferred posted into ledger. Student, जैसे कि a ledger may be defined as book which contains and summarized and classified from, जैसे कि इसमें क्लासीफाइड किया जाता है जितनी भी जो भी ट्रांजैक्शंस जैसे कैश के रिगार्डिंग जो भी एंट्री हुई होगी डिफरेंट डेट्स को, उसे एक अकाउंट्स में शो करते हैं, यानी कि कैश अकाउंट। स्टूडेंट, इसके बाद फीचर्स दे रखे हैं इसके। फीचर्स ऑफ लेजर क्या फीचर्स हैं? लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, यानी जो भी एंट्रीज हुई हैं, जो भी रिकॉर्ड किया है, उनका लेजर क्या है? एज एक मास्टर रिकॉर्ड का काम करता है। इट इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। इससे लेजर को हम किससे तैयार करते हैं? जर्नल से। लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स, यानी जितने हम खाते बनाएंगे उन सब का करंट बैलेंस से दिखाएगा। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर अकाउंट, क्योंकि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। सबसे पहले जनरल, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। Ledger account summarize the effect of the transaction upon assets, liabilities, capital, incomes and expenditure. स्टूडेंट, इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस बैलेंसेस देखिए, जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, इट मीन्स इट रिफ्लेक्ट द डेप्टर्स। डेप्टर्स आर persons who owe to an enterprise an amount for receiving goods and services on credit, such as in illustration number, such as illustration जैसे कि are debtors of the enterprise because of debt balance in their account. Credit balance of personal account
It reflects the creditors. Creditors are persons who have to be paid by an enterprise an amount for providing goods or services on credit. Number 3, debit balance of real account. It tells us what is the value of asset on a particular date. Number 4, credit balance of real account. Generally, real accounts do not show credit balance. In case there is a credit balance, it reflects loss on sale of the asset. Number 5, debit balance of nominal account. It represents an expense such as in salaries, rent, wages, etc. Credit balance of nominal account. It represents a gain or income such as discount account, etc. Next topic, student. Advantages of ledger. Number 1, knowledge of net result. Ledger is the only sources to furnish the net result of all those transactions relating to a particular account. Number 2, helpful in preparing final accounts. Since ledger accounts provide all material for the preparation of final accounts, hence they can be easily prepared to know the gross profit and net profit. Next, knowledge of financial position. देखिए, the balances of accounts relating to asset, liabilities and capital are used in the preparation of balance sheet. Thus, the financial position of a business is scientifically known. इसमें जैसे कि इसके कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस भी होती हैं. जैसे लेजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द बुक्स used by the business as it include all the summaries of transactions. It provide a permanent record of financial transaction of a business. Ledger is a very useful and is of the utmost importance in any business organization. No business can run without ledger. Accounting is not only the incomplete without ledger but zero. इन अदर वर्ड्स, जर्नल इज यूजलेस विदाउट लेजर. क्योंकि सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं जब तक उन्हें लेजर में पोस्टिंग नहीं करेंगे. बिना लेजर के कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक चैन है एक तरीके से. सबसे पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट. स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक यूटिलिटी ऑफ लेजर. देखिए, प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट. यानी जो भी अकाउंट्स हैं, जैसे कैश, परचेज, सेल्स, अदर किसी का नेम, उसे कहता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेजर. कितना बैलेंस बच रहा है, इक्वल है, ये सब चीज़. नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. ये जैसे कि पहले इसी में देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस इन द लेजर. नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. और लेजर अकाउंट के द्वारा क्या करते हैं, जितनी भी इनकम्स हैं हमारी और एक्सपेंसेस हैं, इन सब के बारे में जानकारी फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि इन लेजर ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच इनकम एंड एक्सपेंसेस. The amount of total income and total expenses is known from the ledger account. Number 3, preparation of trial balance. क्योंकि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री से तो लेजर बनता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है.
Ledger helps in the preparing trial balance, which ensures arithmetical accuracy of the transactions recorded in the books of accounts. Number 4 और लास्ट, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि स्टूडेंट में बताया है कि ये चेन वाइज है, पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल है। जनरल एंट्री से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लेजर का तो रहता ही है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। स्टूडेंट देखिए, इसके बाद ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है, यानी कि यहाँ पर आपका नेम ऑफ अकाउंट आ जाता है, जिससे जो भी आप बनाएंगे, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट या अदर किसी के नेम से, इधर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट एंट्री हुई है तो इधर कैश का नेम नहीं आता है इसमें कहीं भी, उसके अपोजिट जो दूसरी एंट्री है उसका नेम आएगा, लेकिन अमाउंट वही आती है जितनी कैश की दे रखी है या उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंट एक्सपाइर बना रहे हैं उसकी अमाउंट आएगी। डेट पर्टिकुलर्स JF जनरल फोलियो, जनरल एंट्री में LF लिखते थे, लेजर फोलियो यहाँ पे JF। अमाउंट फिर ये डेट पर्टिकुलर्स JF यानी जनरल फोलियो और अमाउंट। क्रेडिट इतना ये पोर्शन आधा और इधर को ये डेबिट। तो स्टूडेंट इसमें हमने आज लेजर के बारे में जाना, उसकी मीनिंग, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, क्या उसके एडवांटेज हैं, इन सब के बारे में जानकारी ली। अब नेक्स्ट इसका आएगा क्वेश्चन, कल से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे ही होगा, पहले जनरल एंट्री होंगी उसकी और फिर उसका रेडी करेंगे हम लेज़र। थैंक यू स्टूडेंट।